السلام علیکم، میں ذیشان عزیز ہوں۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں۔ ابھی ایک تو پہلے میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں کہ عمران ریاض خان کو مانگا منڈی پولیس اسٹیشن میں شفٹ کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پہ انویسٹیگیشن کے حوالے کیا گیا ہے، کچھ سیکیورٹی کے پیش نظر بھی ان کو حوالے کیا گیا ہے، اور ان کا جو ریمانڈ تھا وہ 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو وہاں پر شفٹ کیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ عمران ریاض خان کو اس دفعہ گم کرنا، غائب کرنا مشکل ہے۔ یہ اس دفعہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے اس دفعہ احکامات دیے ہوئے ہیں، اس دفعہ عدالت کے آرڈر کے اوپر وہ گیا ہوا ہے، اور اگر وہ گم ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس عدالت کے اوپر آتی ہے۔ وہ عدالت ریسپونسیبل ہوگی کہ ایک شہری جس کو ریمانڈ کے اوپر دیا گیا، پولیس اس کی حفاظت کیسے نہیں کر سکی، وہ کہاں پہ ہے، اور وہ عدالت کوسچن مارک اس کے اوپر آئے گا۔ تو انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں، عمران بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے جو مقدمات ہو رہے ہیں یہ سارے ختم ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ واپس بھی آئیں گے، اور خیر عافیت سے واپس بھی آئیں گے۔ اب تھوڑی سی ہم آج کی میں آپ لوگوں کو مقدمے کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ اینٹی کرپشن کا میں نے آپ لوگوں کو پچھلے اپنے ویلاگز میں بھی بتایا تھا کہ عمران ریاض کے جو مقدمات ہیں وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کچھ مہینے لگ جائیں گے، کچھ مہینے تک وہ اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کے لیڈران کے اوپر، سیاسی رہنماؤں کے اوپر جس طرح مقدمات بنائے گئے، اس طرح وہ یہ سیم سچویشن عمران ریاض کے اوپر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو مقدمات میں الجھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو جیل کے اندر رکھا جائے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ وی لاگ نہ کر سکے، یہ بول نہ سکے، اس کا بولنا بند کر دو۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، لیکن وہ بولنا نہیں چپ کر رہے تھے، وہ بولتے جا رہے تھے، وہ سچ بولتے جا رہے تھے۔ آج جب عمران ریاض کو ضمانت دے دی گئی اینٹی کرپشن کی جانب سے، تو 14 مارچ 2023 یعنی کہ آج 1 مارچ 2024 ہے، تقریباً 1 سال پہلے کی ایف آئی آر میں عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ دہشت گردی کی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، اور وہاں پر ان کا ریمانڈ لیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیس کیا ہے، جو 1 سال پرانا کیس ہے۔ یہ 1 سال پرانا جو کیس ہے یہ زمان پارک کے اوپر ہے، جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے گئی تھی اور وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر جلاؤ گھراؤ ہوا، وہاں پر پولیس کی ایف آئی آر کے مطابق پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے، وہاں پر پولیس کی گاڑیاں بھی جلائی گئیں۔ یہ ایک ایف آئی آر ہے جس میں تشدد، پھر دہشت گردی، اکسانا اور اس کے اندر شامل ہونے کی دفعات ہیں کہ یہ جو جرم ہے وہ کیا گیا۔ اب اس کے اندر عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کے اوپر دیکھوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے عمران ریاض کو غدار بنایا گیا، اور ہم سب کو پتا ہے اس کے اوپر کتنی ایف آئی آر تھیں، اور وہ ساری کی ساری غداری کی تھی۔ چکوال سے لے کے، پنڈی سے لے کے، سندھ سے لے کے، کون سا ایسا صوبہ اور شہر تھا جہاں پر اس کے اوپر غداری کی ایف آئی آر نہیں تھی؟ غداری کی ایف آئی آر بھگتتے بھگتتے وہ گم ہو جاتا ہے، 5 مہینے کے لیے وہ گم ہو جاتا ہے، اور 5 مہینے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا۔ وہ جب بولتا ہے تو وہ اٹکتا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ ریکور کرتا ہے، اس کے بعد اب اس کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس سے اس کو لنک کیا جاتا ہے کہ اس نے کرپشن کیا، اور کرپشن میں اس نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا ہے ٹھیکے لینے میں۔ جب وہ بھی بات نہیں بنتی تو اب اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، دہشت گردی میں معاون قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ اکسانے میں ملوث تھا، وہاں پر جو جلاؤ گھراؤ ہوا وہ اس کے اندر ملوث تھا۔ یہ اب اس کے اوپر ایف آئی آر کر دی گئی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب جب عمران ریاض کے اوپر یہ ایف آئی آر ختم ہوگی، کیونکہ یہ ختم ہو جائیں گی ایف آئی آر، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جلدی باہر نہیں آئیں گے، پلان یہی ہے۔ اب جب یہ ایف آئی آر ختم ہوگی تو سندھ میں، سانگڑ میں، کسی گاؤں میں اگر 2 بندوں کا جھگڑا ہوا ہے تو وہ اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی عمران ریاض کے اوپر ہوگی کہ اس نے اکسایا ہے۔ پھر بلوچستان میں اگر وہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی عمران ریاض کے اوپر مقدمہ ہوگا کہ اس نے اکسایا۔ پھر آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں جہاں اس وقت برف باری ہو رہی ہے، جہاں اس وقت انسان نہیں جا سکتے، لوگ نہیں جا سکتے، وہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا بھی ایف آئی آر میں عمران ریاض خان شامل ہوگا۔ پھر پنجاب کے کسی لالا موسیٰ کے گاؤں میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے کوئی ایسی کہانی بن جاتی ہے، اس کے اندر بھی عمران ریاض کو نامزد کر دیا جائے گا۔
कोई ऐसी जो FIR है अब जो दहशत गर्दी की है, जिसमें कोई जुर्म हुआ है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो मेरे ख्याल में वो भी इमरान रियाज के ऊपर डाल देनी चाहिए। कम से कम केस तो सॉल्व होता है ना, कम से कम उसके नाम तो आ जाएगा ना, कम से कम पुलिस ये तो कह सकेगी ना, देखें जी हमने एक बंदा डाल दिया, ये नामालूम थे और नामालूम में हमने एक बंदा डाल दिया, चलो हमारी कोई तो प्रोग्रेस हुई है। ये जो 14 मार्च 2023 का मुकदमा है, इसमें 2500 लोग नामालूम है। इसमें आप भी हो सकते हैं, इसमें मैं भी हो सकता हूं। कोई पता नहीं है कि मुझे भी कल को ये उठाकर ले जाएं कि इसका भी व्लॉग बंद कर दो, ये क्यों बोल रहा है, इसको नामालूम में डाल दो, इसको 9 मई के मुकदमे में डाल दो, इसको 14 मार्च में डाल दो, इसको कोई अप्रैल वाले में डाल दो, इसको 25 मई वाले में डाल दो, इसको कोई FIA में डाल दो, इसके ऊपर कोई करप्शन का केस डाल दो, कोई इसके ऊपर ऑनलाइन केस डाल दो, कोई लड़की का केस डाल दो, कोई चोरी का केस डाल दो। यार कुछ तो डाल दो, अंदर तो करो ना कम से कम इसको, जिस तरह इमरान रियाज को कर रहे हैं। पहले गद्दार किया, उसको गद्दारी के बाद फिर ठेकिया, उसके ऊपर उसको गुम कर दिया, गुम करने से काम नहीं बना, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कर दिया आपने करप्शन का डाल दिया, करप्शन से नहीं बना अब उसको दहशतगर्द बना दिया आपने। वो एक शख्स क्या क्या कुछ कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है हर चीज की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दे। पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका करा रहा है, हमारे ये बड़ी नॉर्मल थिंग हो रहा है, और जी की हो रहा है, और जी जो करा रहे हैं जी अमेरिका करा रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि जी की हो रहा है, और जी जो करा रहे हैं जी इमरान रियाज करा रहे हैं, सब जो कसूर है वो इमरान रियाज का है, वो बोलता है ये उसका कसूर है। आप उसके ऊपर दहशतगर्दी के डाल देते हैं, गद्दारी के डाल देते हैं, करप्शन के डाल देते हैं, वो गुम हो जाता है महज इसलिए कि वो बोलता है, वो सच बोलता है। कोशिश जो की जा रही है वो यही की जा रही है कि किसी तरीके से उसका ब्रेन हैमरेज हो जाए, कोई वो दिमागी तौर पे फारिग हो जाए, उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दो, उसको इतनी मेंटली अजियत दे दो कि वो कोई ब्रेन हैमरेज हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए और वो बोलना बंद कर दे। लेकिन अल्लाह की जो ताकत है और जो अल्लाह है उसके निजाम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह ने इमरान रियाज की जिंदगी रखी है और उसकी जिंदगी में बोलना लिखा है, वो बोलेगा, वो अंदर भी बोलेगा बैठकर, वो बाहर भी बोलेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो बोलेगा। अगर उसके जिंदगी में यही अल्लाह ताला ने लिखा है ना, तो वो बोलता रहेगा। आपको उसके बोलने से तकलीफ होगी, वो मजीद तकलीफ देगा आपको, वो सच बोलेगा, वो कौम का साथ देगा। मैंने पहले भी कहा था कि उस बंदे के मिलियंस फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, वो चाहे तो दिन में 2-3 व्लॉग कर दे, करोड़ों रुपया उसके पास आता है। सुकून से बैठे अपने फार्म हाउस के ऊपर चिल करे, उठे, एक सुबह व्लॉग कर दे, एक शाम को व्लॉग कर दे, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। उसको क्या जरूरत है ये सारा कुछ बोलने के बीच में? ये तो यार इतना सच बोलने की जरूरत क्या है तुम्हें? आ रहे हैं ना करोड़ों रुपए, चुप करके बैठे रहो। लेकिन नहीं ना, उसको पैसे से लगाव नहीं है, उसको लगाव इस मुल्क से है। ये उसका सबसे बड़ा कसूर है। और यही लोग तो गद्दार होते हैं जिनका मुल्क से मोहब्बत होती है, यही लोग तो सबसे बड़े गद्दार होते हैं, यही लोग करप्ट होते हैं, इन्हीं लोगों को गुम किया जाता है और यही लोग दहशतगर्द हैं हमारे। ये उस इमरान रियाज का जो है वो कसूर है। और ये इस वक्त सिचुएशन है कि मैक्सिमम कोशिश की जा रही है, उसको पहले ऑफरें दे दी, उसको डील दे दी, उसको पैसों की ऑफर कर दी, बैरून मुल्क की उसको ऑफर कर दी, उसको मिनिस्ट्री की ऑफर कर दी, हुकूमतों की ऑफर कर दी, पता नहीं क्या क्या उसको ऑफर करके देख ली है। वो नहीं माना, वो नहीं मान रहा है ना, वो नहीं मानेगा यार। वो बोलता है, ये उसका काम है, यही उसको आता है, सच बोलना, और उसको कुछ भी नहीं आता, उसको कारोबार करना नहीं आता है, वो ये हुकूमत नहीं चला सकता, उसको मिनिस्ट्रियां सियासत नहीं आती, उसको मुनाफकत नहीं आती है, उसको सिर्फ सच बोलना आता है। ये उसको बोलने दो, ये आपके काम आएगा, ये असासा है। अब वो जिसके ऊपर दहशतगर्द जिसको बना दिया, उसने कौन कौन से जो हमारे यहां पर इंसिडेंट हुए उनको कवरेज नहीं की। वो मुनावा पुलिस वाला था, जो सवात की दहशतगर्दी की कवरेज थी वो थी। वो एतजाज बच्चा था, इमरान रियाज ने वो भी बताया कि मैंने उसकी कवरेज मैंने उसकी चलाई, उसके ऊपर मुझे तालिबान के एहसानुल्लाह एहसान ने धमकी दी थी कि जी ये चलाया तो तुम्हारा ये आखिरी पैकेज होगा। सियाचिन की कवरेज 3 दफा की है। एक दफा जब आप वहां पर कवरेज करने जाए, आपका सांस वहां पर रुकता है। ये हमारी पाक फौज वहां पर खड़ी है, और उसके बाद इमरान रियाज 3 दफा वहां पर गया था, इसने वो कवरेज की थी। फिर उसके बाद बेदिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ, वहां पर गोलियां चलती नहीं थी, ये वहां पर था। मनावा में हुआ, ये वहां पर था। और तब तो नहीं याद आया कि ये दहशतगर्द है।
मैं हैरान इस बात पर हूं कि 14 मार्च 2023 और आज 1 मार्च 2024, तकरीबन एक साल 2500 नामालूम लोग, आप किसी को भी उठाकर नामालूम में डाल देंगे, आप मुझे डाल देंगे, आप किसी को भी जो आपको पसंद नहीं है हुकूमत उसको उस नामालूम में डाल देगी और उसको दहशतगर्द बना देगी। और आपको 1 साल तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई नामालूम की, वो इमरान रियाज की शिनाख्त नहीं हुई। आप अपने घर में अपने किसी बच्चे से पूछे उसकी तस्वीर दिखाकर कि ये कौन है, वो आपको बताएगा ये इमरान रियाज है, और वो बताएगा कि ये साफी है, ये सच बोलता है और मुझे ये पसंद है, मैं इसको सुनना चाहता हूं। आपसे 1 साल तक शिनाख्त नहीं हुई, आज आपको उसकी शिनाख्त करना याद आ गई है। आज आपको पता लगा ये दहशतगर्दी में मुलविस है, ये उकसाने में मुलविस था, आज ये याद आ गया आपको। और फिर ये मुकदमात कैसे हैं? इन मुकदमात की जो हकीकत है वो ये है कि आपको किसी भी जुर्म में उठा लिया जाता है। बस आपके पास आते हैं, आपके घर में घुसते हैं, आपको उठाते हैं, आपकी कोई चादर चार दीवारें नहीं, आपका कोई तकद्दुस नहीं, आपकी कोई फैमिली नहीं, आपके कोई बच्चे नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं, आपके मुंह पे कपड़ा डालेंगे, आपके घर के अंदर ये घुस जाएंगे, कोई आपके पर्दे का तकद्दुस नहीं है, कोई आपकी मां बहन बेटी बीवी का तकद्दुस नहीं है, आपके घर के अंदर घुसेंगे, आपको उठाएंगे, उसके बाद साबित आपने करना है। पूरी दुनिया में होता है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, फिर वो सबूत सामने लाए जाते हैं कि जनाब ये सबूत हैं और इन सबूत के ऊपर आपको गिरफ्तार करने आए हैं, आप आ जाए। यहां गिरफ्तारी डाल दी जाती है, एक एक हफ्ता जेल में, 15-15 महीने यहां पर लोग 6-6 महीनों से साल जेल में रह लेते हैं और उनके सबूत नहीं आते, और फिर एंड में क्या होता है, बाइज्जत जी इनको बरी कर दें। अब वो जो 8 दिन रहा है जेल में उसका हिसाब किताब कौन देगा? अब जो इससे दहशतगर्दी में डाल दिया है इसका हिसाब किताब कौन देगा? ये इमरान रियाज ने साबित करने कि वो वहां पर नहीं थे, या ये इदारे साबित करेंगे कि वो उसमें मुलविस था? या सिर्फ कह देना कि बस हमने कह दिया ये था तो बस ये था, अब साबित करो तुम नहीं थे, अब लगाओ 6 महीने। और यही होगा सबके साथ, मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ यही होगा। जो नापसंद होगा वो अंदर जाएगा और यही कुछ भुगतता रहेगा। ये यहां पर जो सहाफत है हमारी पाकिस्तान की, ये उसका कड़वा सच है। ये जो इमरान रियाज बोल रहा है, ये जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बोल रहा है, आपके लिए, हमारे लिए बोल रहा है, ये कड़वा सच है कि यहां पर बोलना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज ये जुर्म करता रहेगा, बार बार करेगा, और इससे बड़े से बड़ा ये जुर्म करेगा सच बोलने का। और ये भी मुझे मालूम है कि इस दफा उसको जल्दी मुकदमात से रिलीज ये लोग नहीं करने वाले, महज इसलिए कि क्वीन जो है वो उसके ऊपर तनकीद ना की जा सके। वो क्वीन जो कहती है कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, उसके ऊपर तनकीद ना हो और वो आराम से अपनी जो मिनिस्ट्री है वो इंजॉय कर सके, अपनी जो वजारत है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।